any problems. But today is the first class only for the introductions and discuss about your the CBSE syllabus and your the blueprints how to study the whole years to make a plan. Today's class you are the only for the overall of your the how to make a plan to solve or your the complete your the syllabus on discuss today here. So as per your the syllabus, first we check your the syllabus. Okay, what is the syllabus of your the class 10 as per your the CBSE? So see this one your the syllabus. No, this one your the screen that you put the shown your the syllabus or whatever you have to your the whole years your the synopsis syllabus everything is here. This one. So as per your the CBSE, your the whole subject means the total complete subject divided into the your the two terms. That your the term is the first and your the second term shown your the screen. So in your the first terms, you have to in the first term. So see what will be the chapters in the first term. That one the chapter your the unit one. That one the functional English. Unit two that is called your the web application. And unit 3 that is called the word processing. So in the first term or the first term in the summative one that you are the three units functional English, web applications and word processing. And you are the second term you are the rest four units that is called the spreadsheets, then you are the digital presentations, email messaging and new one the chapter this is the very new for the all the students. That is the new one, the database development basic. Database development basics. So you have to send from the starting the unit 1 to unit 6. Unit 1 to unit 6. This one you are the also you have to study in your the class 9. In the class 9, just from the class 9 to upgrade in your the class 10. Then basically or manually changes in from the class 9 to 10. Some advanced features has come in the class 10. Rest one you have to study in your the class 9. तो ध्यान देने की बात है कि जो क्लास 9 में पढ़े हो उसी चीज को हम लोगों को थोड़ा से एडवांस लेवल्स पर हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है और उसके साथ एक न्यू चैप्टर वन न्यू चैप्टर हैज एडेड that one the last chapter unit 7 that the name is the database development. ये एक this is the very new बहुत ही new and very interesting chapters that is called the database development. तो एक आप लोग को नया चीज जो पढ़ना है database development वो हमारा यूनिट 7 बट दिस इज द न्यू. तो मैं इस न्यू चैप्टर्स को कुछ पहले ही कवर करूंगा कि जिसमें आप लोग को कभी काफी अधिक टाइम देना पड़े और इसको बढ़िया टाइम देकर सीख सकते हो क्योंकि रेस्ट वन जो है पढ़े हो क्लास 9 में तो इसलिए वो दैट इज कॉल्ड द रिकवर एंड रिकॉल. उसको आप रिकवर भी कर सकते हो रिकॉल भी कर सकते हो बट फॉर द लास्ट चैप्टर इसमें थोड़ा सा टाइम देना है तो मैं इसे पहले ही स्टार्ट करूंगा और आप लोग को नॉलेज दूंगा इसके बारे में जिससे आपको काफी टाइम मिल जाए इसके बारे में समझने को और लर्न करने का. ऐसे अच्छा क्वेश्चन से मैंने कुछ अच्छे नंबर का क्वेश्चन इससे आता है. तो this one the blueprints of your the whole subject your the subject is your the information technology that code is the 402. So this one the divided in the term 1 and term 2 and now the last one the this one the practical. You know this one the IT is your the vocational course. Vocationals you know very well when you cross or fail in the elective subjects then automatically these vocational subjects replace on them.
तो इस वोकेशनल सब्जेक्ट्स का एक अलग ही एक महत्व है, इम्पोर्टेंस है। वोकेशनल से नाम इसलिए दिया गया है, दिस वन द जॉब ओरिएंटेड कोर्स। आज के समय में जो हमारे डिजिटल इंडिया, जो हमारे अनुसार हमारे गवर्नमेंट के अनुसार से, इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार से जो चल रहा था प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल इंडिया। इन द डिजिटल इंडिया देयर आर द सो मेनी वोकेशनल कोर्स, जिसमें कि कुछ टेक्निकल्स बच्चे कुछ टेक्निकल कोर्स कम समय में कर कर और जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जॉब गेन कर सकते हैं। इस टाइप को सब्जेक्ट्स को एक कैटेगरीज नाम दिया गया है, दैट कैटेगरीज नेम इज द वोकेशनल्स। बहुत सारा देखते हो पेपर, न्यूज़पेपर में दैट इज कॉल्ड द वोकेशनल ट्रेनिंग्स कोर्स। तो इसी तरह से सीबीएसई ने इसे स्कूल लेवल से ही लॉन्च कर दिया है कि यदि बच्चे इसमें अपना अच्छा इंटरेस्ट दिखाएं, अच्छा एक्सपेरिमेंट्स कर पाएं और अच्छा इसमें नया क्रिएशंस, इन्वेंशंस, अपना अच्छा स्किल बना ले, तो ये जाकर कम ही समय में ये अपना जॉब भी मिल सकता है और जॉब भी कर सकते हैं। तो दैट वन द वोकेशनल्स नेम। So vocational, that subject is the 50 marks is your the theory and 50 marks is your the practical. 50 हमारा क्या है theory and your the 50 your the practicals. So practical is the so very important. Practical chapters is the very important. तो ये हमारा लिए बहुत ही important chapter है। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है कि हाउ टू गेन और हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द प्रैक्टिकल। ये ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल में कैसे हम लोग अपना मैक्सिमम मार्क्स को ला सके या मुझे मिल सके। इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिकल में एक दिया गया, फर्स्ट ईयर द प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दैट द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट्स मीनिंग इज द प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो व्हाटएवर जो आपके यहाँ पर हमारे होल ईयर, होल ईयर्स में जितने हम लोगों ने पढ़ाया टोटल, जिसमें हम लोगों ने वर्ड को पढ़ाया, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, दैट बोले पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हो या एक्सेल, ये एक्सेल हो, ये सभी से रिलेटेड आपको हम लोग और डेटाबेस से रिलेटेड आपको मैं दूंगा असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, जो कि आपको बनाना है। एक आपको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी और स्टिक फाइल में सबमिट करना है, दैट वन द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट को स्टिक फाइल में ये सेशंस का एंड, यानी जब सेशंस खत्म होने लगेगा तब देना है, दैट इज कॉल्ड द इन द दिसंबर मंथ में आपको ये सबमिट करना है प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट के लिए मैं असाइनमेंट्स दूंगा और आप बच्चे अपने घर में बनाकर प्रोजेक्ट को और उसे प्रिंट आउट निकाल कर वो फाइल सबमिट करना है स्टिक फाइल में। जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, सपोज बनाया गया था कि इन्वायरमेंट सिस्टम्स, इंडियन क्रिकेट, फ्रीडम फाइटर, देयर आर द सो मेनी टॉपिक्स। किसी भी टॉपिक्स पे अगर आपने बनाया है योर द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड में जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उस प्रोजेक्ट को आप सबमिट करोगे अपने कंप्यूटर फैकल्टी को, कंप्यूटर टीचर को, और उसी से रिलेटेड हम लोग लेंगे उसका भाइवा जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। सपोज बनाए हो दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट सिस्टम पर, इन्वायरमेंट पर बना दिए, तो इन्वायरमेंट जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसी प्रोजेक्ट से मैं भाइवा लूंगा कि ये आपने कैसे इसको सोच कर बनाया, इसके लिए बनाने के लिए विच एप्लीकेशंस यानी सॉफ्टवेयर का यूज किया, विच टाइप ऑफ कमांड्स का यूज किए, यदि एनिमेशंस क्या यूज किए थे तो उस एनिमेशंस का नाम क्या है, यदि जिस प्रिंटर से निकाले उस प्रिंटर का नाम क्या है। तो ये देयर आर द सो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम योर द प्रोजेक्ट रिलेटेड साइड से, प्रोजेक्ट से आएगा, प्रोजेक्ट से मैं उसका लूंगा, दैट इज कॉल्ड द भाइवा। एक भाइवा होगा जो आपने प्रोजेक्ट बनाया। तो जो बच्चे अपने मन से अपने से बनाते हो, अपने मेहनत करके बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली उसका भाइवा भी अच्छा होता है, क्योंकि वो सारा बेसिक से लेकर जो भी उसमें लॉजिकल चीज का यूज किया है, और लॉजिकल चीज ही नो, दे नो, तो वो गुड आंसर्स देते हैं। तो वो दैट इज कॉल्ड द रिलेटेड प्रोजेक्ट से आपका वो भाइवा अपना आएगा। देन यू ऑन द प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल्स और रिपोर्ट एंड पोर्टफोलियो। प्रैक्टिकल फाइल्स मींस जो होल ईयर्स कंप्यूटर लैब में व्हाटएवर जो भी असाइनमेंट्स एज योर द कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर टीचर्स के द्वारा कराया जाता है क्लासेस में, जो आपको कंप्यूटर क्लासेस में, उसी का एक आपको बनाना है प्रैक्टिकल फाइल। मींस देयर प्रैक्टिकल कॉपी, जो हम लोगों को लैब एक्टिविटी नाम से कॉपी जानते हो इन द क्लास 9 लैब एक्टिविटी जो सबमिट किए थे, उसी तरह से उसमें 10 to 15 प्रैक्टिकल्स क्रिएट करना है, बनाना है, मेक इट, एंड देन आफ्टर यू सबमिट।
फिर इसको लास्ट में जब आपका सेशंस एंड होने लगेगा तो ये प्रैक्टिकल आपको सबमिट कर देना है। And then after your the last one, the demonstration of skill competency in lab activity। अब हम लोग देखेंगे आपका लैब एक्टिविटी कि जो कंप्यूटर में लैब आप यूज कर रहे हो उस समय किस तरह का आप अपने पास में एक्स्ट्रा स्किल क्रिएटिविटी और क्या क्या आप उसमें यूज कर रहे हो। ये लैब में हम लोग एक्टिविटी को आपको देखेंगे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे आपका कि किस तरह से कोई असाइनमेंट्स मैंने लैब में दिया तो आपने लैब में उसको इतने कम टाइम में और कितना अच्छा क्रिएटिव इनोवेशंस लगाकर आपने उसको सॉल्व किया है। सो आई हैव टू चेक इट और उसके अनुसार से भी आपको स्कोर मिलेगा। दिस वन योर द 4 पैरामीटर्स, दैट वन द 4 पैरामीटर्स टू चेक और स्कोर योर द प्रैक्टिकल मार्क्स। इसका आपको प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मिलेगा। ये दैट वन द 4 हमारे पास में है, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर्स। इसी पैरामीटर से हम आपको जज करेंगे कि आप किस तरह से अब अपना प्रैक्टिकल्स बना रहे हो, घर में बना रहे हो, जो फाइल के रूप में है, जो प्रोजेक्ट के रूप में वाइवा जो आंसर्स दे रहे हो, जो कंप्यूटर लैब में कर रहे हो और जो कॉपी में कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द 4 पैरामीटर्स। इस 4 पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग इसको चेक करेंगे कि हाँ आपका किस तरह से ये आपका कर रहे हो। So this one the 50-50 divisions of your the practicals, 50 is from the theory and 50 is from your the practicals। So this one is your the parameters और this one the whole आप देखा जाए तो एक तरह से आपका यही है हम लोग को पोर्शंस। इसी पोर्शन से आप लोग को ये 100 मार्क्स स्कोर्स आप लोग गेन कर पाओगे। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक्स। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोगों को टॉपिक किस किस तरह से पढ़ना है। अब चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो कम ऑन द टॉपिक्स, दैट वन द ऑल आर देयर कंटेंट्स कि आप लोग को जो कंटेंट्स है, अब कंटेंट्स को वो तो हमारा ओवरव्यू था, एक अपना पूरा ओवरव्यू। अब इस ओवरव्यू के अनुसार से अब हम दिखाते हैं आपको टोटल कंटेंट्स और इस कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अब नेक्स्ट वन बाय वन जो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन योर द फंक्शनल इंग्लिश जो क्लास 9 में पढ़े थे, जो क्लास 9 में था, दैट इज कॉल्ड द बेसिक्स लेवल्स फंक्शनल इंग्लिश एंड हियर इज द इंटरमीडिएट। ये इस लेवल के इंटरमीडिएट लेवल का आपका दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल इंग्लिश। सेकंड वन योर द वेब एप्लीकेशंस, थर्ड वन द वर्ड प्रोसेसिंग, then after your the fourth unit has equal spreadsheet and fifth one your the that one your the fifth, this one your the what that is called the digital presentations, the digital presentations and this one your the email messaging and then your the database development। तो इस तरह से इस चैप्टर को डिवाइडेड किया गया है और इस चैप्टर्स को आपके पास में जो 7 यूनिट है, 7 यूनिट्स टोटल यूनिट्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट हमारा दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल इंग्लिश। तो फंक्शनल इंग्लिश एकदम बेसिक इंग्लिश है जो आप लोग क्लास 6, 7, 8 तक आप लोग कवर किए हो, वही फंक्शनल इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हो, दैट वाज द फंक्शनल इंग्लिश। बिकॉज इसको इंग्लिश क्यों दिया गया है, एनीबॉडी नो कि सब्जेक्ट इज द आईटी, सब्जेक्ट इज योर द आईटी, बट व्हाई एडेड योर द इंग्लिश सब्जेक्ट इन दिस कोर्स? कोई भी बच्चे क्या बता पाओगे? एनीबॉडी, कोई भी स्टूडेंट बता पाओगे? अपना माइक को आप लोग सब म्यूट कर लो और जो बोलना चाहोगे वही बच्चे मेरे को आंसर दोगे। ऑल स्टूडेंट्स हैव टू फर्स्ट कि बिना बोले अच्छे बच्चे की तरह माइक को म्यूट कर दो और जो आंसर बोलना चाहोगे वो बोल कि why you are the in the IT subjects में why your the English is added। मैं एक पूछ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द काजल कुमारी क्लास 10 से, आप बताओ कि क्यों इंग्लिश इसमें ऐड किया गया है? काजल यू लिसन माय साउंड, मेरा आवाज को सुन रहे हो? नो। शांतनु, यस सर। शांतनु ये बताओ मेरे को कि ये क्यों इस सब्जेक्ट्स में इंग्लिश को भी ऐड किया गया? जब पढ़ना है कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड आईटी, बट व्हाई एडेड योर द
इंग्लिश सब्जेक्ट। कभी मन में आया किस तरह कोई क्वेश्चन में पूछूं कि इंग्लिश डाला गया है? नो। ओके, मैं सुनो। हाँ, ये जयता, जयता हो ना? जयता पे अपना ये हैंड शेक किए बताओ क्या क्वेश्चन है? यू आस्क योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं, मैं आंसर बोलूंगी। बेंगलुरु में जो हमारा आईटी सिलिकॉन वैली है, वहाँ पर इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश के लिए ज्यादा प्रिपेयर करा था। वाह, बहुत अच्छा। कुछ आपका रिलेटेड उससे आंसर है जो हम चाह रहे थे। सो ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू से जो यहाँ पर जयता ने जो आंसर्स दिया है, एक बेंगलुरु का एक जगह का बता रही है नाम, बट मैं बता दूं कि इसका क्या है। गेट व्हाई द एडेड योर द इंग्लिश इन योर द आईटी सब्जेक्ट्स। मैंने बहुत पहले आपको बोला दैट इज कॉल्ड दिस सब्जेक्ट इज द वोकेशनल सब्जेक्ट्स। मैंने पहले बोला कि दिस वन द वोकेशनल सब्जेक्ट्स। तो वोकेशनल्स का मैंने मीनिंग बताया था। वोकेशनल्स इज द जॉब ओरिएंटेड कोर्स। मीन्स इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, नौकरी मिलने में आसानियां होती है। दैट इज कॉल्ड जैसे जॉब मिलने में, तो जॉब ओरिएंटेड है, नौकरी लायक, नौकरी पाने लायक का ये कोर्स है। तो जहां पर वेयर यू हैव टू गो टू द जॉब, जहां भी जाओगे जॉब करने के लिए, तो वहां पर जॉब का मतलब ये नहीं होता कि खाली कंप्यूटर में टाइप करने। वहां पर बहुत सारे लोगों से आपको बात करना, बताना, समझना, समझाना। or because this one you are the IT is the computer is the global is the subject of global। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको स्किल भी होना चाहिए। स्किल्स दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशंस, यहाँ पर आप दूसरे से बात कर सको, उसके बात को समझ सको। सो इसलिए यहाँ पर दिया गया है फॉर योर द कम्युनिकेशंस कन्वर्सेशंस के लिए, वोकेशनल्स में स्किल डेवलपमेंट को करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इंग्लिश को ऐड किया गया है। तो जितने भी वोकेशनल कोर्स है सभी में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ पार्ट्स दिया रहता है। तो इसीलिए वोकेशनल्स है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश को ऐड किया गया है। अंडरस्टूड नाउ? तो अब ये है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश के लिए मैं, क्योंकि लंबा है, तो हम लोग कंप्यूटर बेस पर चलेंगे पूरे कोर्सेज को। और इंग्लिश के लिए मैं इस पूरे पोर्शन को इंग्लिश टीचर को दे दूंगा, जो कि आपको इसमें ऑनलाइन में पढ़ाएंगे आपको। और मैं सभी को टोटल व्हाटएवर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका तो एक रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा, और प्लस मैं सभी को सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं मैसेज भेजकर सबका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा, और आप उसके अनुसार से नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के लिए स्टूडेंट ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट अभी न्यू कॉपी परचेज नहीं करोगे। जो भी आपका क्लास 9 का जो आपका जो भी नोटबुक में कुछ पेज बचा हुआ है, उसी नोट कॉपी का आप लोग यूज कर कर उसमें नोट्स बनाओगे। कोई नया कॉपी नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, पुराने कॉपी को ले लेना और उसके बचे हुए पेज में ही अपना नोट्स को बनाओगे। दैट वन द नाउ नेक्स्ट वन योर द। तो मैं फंक्शनल इंग्लिश के लिए मैं आपको टीचर्स को अरेंज कर दूंगा, और फंक्शनल इंग्लिश के लिए मैं नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ईच एंड एवरी व्हाटएवर जो ही पढ़ा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स का, ऑल नोट्स यूनिट्स का मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। सो कम ऑन योर द सेकंड यूनिट दैट इज कॉल्ड द वेब एप्लीकेशंस बेसिक्स। तो मैं आज जो है वेब एप्लीकेशंस बेसिक्स को मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। दैट वन द। सो कम ऑन द वेब एप्लीकेशंस बेसिक्स। दैट वन योर द वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस बेसिक स्टूडेंट्स जान दोगे वेब एप्लीकेशन बेसिक क्या होता है? मेरे पढ़ाने का एक ये है टेक्निक्स कि व्हाटएवर जो भी वर्ड्स है, उस वर्ड्स को बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से समझोगे। नहीं समझ में आया दोबारा पूछोगे मेरे से। और मैंने कितने बार बताया है कि कंप्यूटर्स में बहुत ही एक साइंटिफिक और एक बहुत ही लॉजिकल वर्ड उसके अंदर में छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। यदि उस वर्ड को आपने कैच कर लिया तो बहुत ही इजी वे में आप इसे अंडरस्टूड कर सकते हो, और बहुत लॉन्ग समय के लिए आप इसको रिमेम्बर भी कर रख सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड द वेब। व्हाट इज द वेब? पहले वेब की बात समझोगे। वेब, व्हाट इज द वेब? तो वेब जो टर्म है, वेब टर्म हैज कम फ्रॉम योर द इंटरनेट।
इंटरनेट के वर्ड से ये वेब आया है। तो इंटरनेट समझ गए कि इंटरनेट वेयर वी आर द ग्लोबली कनेक्टेड विद द ईच अदर, यानी ये हम लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक दूसरे से जो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, वो दैट वन द इंटरनेट। तो वो इंटरनेट दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द वेव। तो वेव का मतलब हो गया दैट वन यू आर कॉल्ड द इंटरनेट। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? Second one, you are the applications. Applications is the alternate word or your the singular word. You are the come from your the software. इस सॉफ्टवेयर से वर्ड आया है कि दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन। जो आप लोग सुनते हैं ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर, दे आर द सो मेनी सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर से ही वर्ड आया है दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशंस। तो ये एप्लीकेशन जिस सॉफ्टवेयर को आप लोग देखते हो, दे आर द सो मेनी सॉफ्टवेयर आर योर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दे आर द सो मेनी गेम्स, दे आर द सो मेनी, दे आर द सो मेनी योर द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये जो होता है दैट वन इज द सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस का होता है, एप्लीकेशंस का एक यूनिक डिफिनेशन होता है, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क। एप्लीकेशंस क्या करता है? परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, कुछ पर्टिकुलर्स कुछ टाइप का काम को ही वो कर कर परफॉर्म करता है, तो उसे बोलते हैं दैट वाले को द एप्लीकेशंस। तो एकदम आ जाते हैं हम लोग बेसिक्स वर्ड में आ जाते हैं समझने के लिए। वेब मतलब इंटरनेट, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर। अब इस दोनों को यदि हम लोग मर्ज कर ले तो कहने का मतलब वेब एप्लीकेशन मतलब हो गया इंटरनेट पर चलने वाला सॉफ्टवेयर। जो चीज इंटरनेट पर, हमारा इंटरनेट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर चलता होगा बिल्कुल द रन, चलना का मतलब रन, रन का मतलब साइंटिफिक वर्ड में, कंप्यूटर को वर्ड में दैट इज कॉल्ड द एक्जीक्यूट, परफॉर्म। तो यदि इस तरह का चीज होता है कि जो इंटरनेट पर चलता हो या एक्जीक्यूट करता हो, परफॉर्म करता हो, उसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस में जो सॉफ्टवेयर हमारा जो चलता है, ये एक लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में एक स्क्रीन में दिया हुआ है। यहाँ दे रहा है, पता नहीं स्क्रीन दिखाई दे रहा हुआ है नहीं, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज करता हूँ अपने अनुसार से। From your the left hand side, in the left hand side, here the one pictures, एक यहाँ पर है आपके पास में, that one they देख रहे हो, this one the picture, कि एक यहाँ पर लैपटॉप है और लैपटॉप के सराउंडिंग, जो सराउंडिंग जो बना हुआ है, देयर द HTML, PHP, XML। तो ये इंटरनेट का एक साइन दिया गया है, और इंटरनेट पर जो चलने वाला जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, XML जो सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा है, HTML जो पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड PHP भी नहीं पढ़े होंगे आप लोग, क्लाउड, ये सब हमारा है दैट वन योर द एप्लीकेशन, जो ये इंटरनेट पर चलता है, इंटरनेट पर रन करता है। तो इंटरनेट पर रन करने वाले तो आपके पास में अभी जैसे कि हमारे आरोग्य सेतु का हमारा बना हुआ, आरोग्य बना हुआ है, देयर आर द सो मेनी ई शॉपिंग फाइल बना हुआ है, देयर आर द मेनी सो मेनी गेम्स बना हुआ है। तो ऑल आर योर द वेब एप्लीकेशंस, वो सब अपना वेब एप्लीकेशंस है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी वेब एप्लीकेशंस पर, इंटरनेट पर चलने वाला है, चलने का माध्यम या किस प्रोसेस से चलता है, ये इसका बेसिक टर्म्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। नाउ so next one you are the, so see here is the one graph or pictures, you are the, here you are the, this one the side you are the एक बना हुआ है that one the wave, that is called the internet, internet sky, that is called the wave है। और वाव, एक यहाँ ग्राफ दिया that one the टेक्स्ट, टेक्स्ट के थ्रू whatever जो टेक्स्ट मैंने जो प्रोग्रामिंग किए हैं उस टेक्स्ट के थ्रू और भाया नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू हमारे जाता है that one the application on your the wave। और उसी वेव को वेब एप्लीकेशंस के थ्रू, through the web applications and then come in your the so many devices, and then devices through other user means the I, we, all are the users। और फिर यूजर इस एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, चलाते हैं या देखते हैं। तो एक हमारे पास में क्या है कि जो भी हम लोग जो वेब एप्लीकेशंस देखते हैं
वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टेक्स्ट मतलब जो हम लोग कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं उस टेक्स्ट फॉर्मेट में उसे हम लोग टाइप करते हैं, फिर वो उसको किसी नेटवर्क के माध्यम से हम लोग उसे इंटरनेट तक पहुंचाते हैं, और इंटरनेट में जाने के बाद वो यूजर किसी कंप्यूटर डिवाइसेस, लैपटॉप डिवाइसेस या हमारे पास में कोई भी स्मार्टफोन के थ्रू यूजर्स उसे एक्सेस करते हैं। तो ये दिस वन द बेसिकल दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफ के थ्रू में थोड़ा सा दिखाया गया है। बट इस ग्राफ को अपने आइडियोलॉजी, अपने माइंड के अनुसार से आप भी अपने अनुसार से खुद पर खुद ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो इस तरह से जो बेसिक यहाँ पर जो दिया हुआ है वही चीज होगा, या आपके अनुसार से भी। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये सभी बच्चे अपना सोच सोच के अपने अनुसार से भी डिजाइन कर सकते हो। तो दिस वन द मेरा कहने का मोटो, दैट वन द मोटो इज द वेब एप्लीकेशंस, कि इंटरनेट पर, वेब पर चलने वाले एप्लीकेशंस के बारे में यानी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ना है कि भैया पहले हमको आना है दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को कैसे टाइप करेंगे, फिर कैसे किस नेटवर्क माया, किस नेटवर्क मीडिया, किस नेटवर्क के भाया के थ्रू हम लोग उसे इंटरनेट तक पहुंचाएंगे, और फिर कैसे उसको यूजर्स एक्सेस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का हमारा बेसिक है। तो फर्स्ट योर द कंटेंट हमारे पास में मिला है दैट वन द वेब एप्लीकेशंस बेसिक्स, that on the chapter, and that on the chapter name is the working with accessibility options, working with the accessibility options। ये हमारे पास में ये एक हमको पढ़ना है दिस वन द चैप्टर। तो accessibility, anybody know what is the meaning of your the accessibility? कोई बच्चे अपने अनुसार से बताना चाहते हो तो बताओगे एक्सेसिबिलिटी का क्या? मैं बताऊं, वर्ड में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ईच एंड एवरी मीनिंग। मेरे बात को ध्यान से कैच करोगे, मीन्स समझोगे, पकड़ लो पाओगे वर्ड को, तो आप उसे बहुत ही इजी वे में समझ जाओगे। एक्सेसिबिलिटी का कोई बच्चे बता पाओगे? दैट इज कॉल्ड द ऋतिक रॉय, ऋतिक रॉय क्लास 10 सी। ऋतिक रॉय, लिसन माय वर्ड वॉइस। एनीबॉडी? नो। ध्यान लगता है कि पढ़ाई में नहीं, कोई स्क्रीन को देख नहीं रहे हो। पीयूष, पीयूष बता पाओगे व्हाट इज द मीनिंग? हाँ बोलो इसके आंसर। वर्किंग विद द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? एक्सेसिबिलिटी सर किसी चीज को एक्सेस करने का एबिलिटी मींस एक्सेस, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो जो उसको सर आपने पहुंच के जेंडर, कुछ काम करना, पहुंच कर कुछ काम करना। चलो आपके अनुसार से कम थोड़ा कुछ दिन ट्रांसलेट किए हो। ओके चलो ठीक है। मैं आप एक खाली थोड़ा सा चाहता हूँ आप भी उसमें एक्शन में अलर्ट कितना हो, मैं थोड़ा सा उस चीज को देखना चाहता हूँ। ओके राइट। सो नाउ ये जो हमारे पास में है वेब एप्लीकेशंस में, दैट वन द चैप्टर इज द वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, कि यदि हम लोग वेब एप्लीकेशंस में, मैंने पहले बताया है टेक्स्ट बताया है, टेक्स्ट यदि मैं किसी चीज को भी यहाँ पर यदि हम लोग एक्सेस करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारे देयर आर द सो मेनी योर द ऑप्शंस। तो भाई ये क्या है, ग्रहण करने के लिए मतलब सबसे पहला तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको टेक्स्ट मैटर चाहिए, और जो टेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड द ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस, दैट वन द ऑल द टेक्स्ट मटेरियल, इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट मैटर। इस टेक्स्ट मैटर कहाँ से आता है? वेयर? थ्रू विच ऑप्शंस? ये कीबोर्ड्स के थ्रू हम लोग इसको टाइप करते हैं, दैट ऑल आर द ऑप्शंस टेक्स्ट मैक्सिमम। तो सबसे बड़ा तो ये जो है दैट वन द चैप्टर, कि हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड द वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, कि हम लोग जो कीबोर्ड्स के थ्रू, दैट वन द कीबोर्ड्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे चीज को एक्सेस करते हैं, और उस एक्सेसिबिलिटी को ही यहाँ पर बताया गया इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए, कि हम लोग कीबोर्ड को एक्सेस करने के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो आप स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि जितने ही बच्चे भी लगभग पढ़ रहे हो, बहुत कम ही बच्चे कीबोर्ड्स के ऑप्शंस के बारे में भी पढ़े होंगे।
सभी जानते हो कीबोर्ड वही चीज होता है जहां पर हम लोग ABCD या 1 2 3 या प्लस माइनस साइन दिया वो बस मुझे टाइप करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है, अल्ट टैब का कोई फंक्शन यूज करना है, टैब से हम लोग स्पेस यूज करना है, बस इतना ही। अब ये बताओ कि क्या इसी कीबोर्ड्स को मैं कोई ब्लाइंड पर्सन्स को दे दूं या कोई हियरिंग जिसको सुनाई ही नहीं देता हो, और भी बहुत सारे डिसेबिलिटी ऑप्शंस है, जिसके पास में ना कीबोर्ड चलाने के लिए ना हैंड है, ना उसके पास में उंगली ही नहीं हो, तो क्या वो सब बच्चे या वो उस तरह के पर्सन्स क्या इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं? तो इसमें यही एक क्वेश्चन है कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में कि यदि इस तरह के डिसेबिलिटी पर्सन्स भी हो तो हमारे जो ये कीबोर्ड है उस कीबोर्ड को वो भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट। कि यदि डिसेबल पर्सन्स भी हो, डिसेबल पर्सन्स भी है, वो भी इस हमारे कीबोर्ड्स को यूज कर सकते हैं। सो हाउ? सो ये देखोगे दैट वन यूर द फर्स्ट वन द कीबोर्ड टैब्स में, दैट वन द की द स्टिकी की। स्टिकी की के थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनेशंस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे और थोड़ा सा एक बार रीडिंग करोगे कि व्हाट इज द रिटन इज हियर। Sticky key is in the accessibility features to help computer user with the physical disabilities। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज है वो उसके लिए एक फीचर्स बनाया गया है जिसके थ्रू वो इसका यूज कर सके। सो इस तरह का की है, देयर आर सो मेनी की स्टिकी की से होता है दैट वन, स्टिकी की के ऑप्शंस है दैट वन। द नेक्स्ट वन द फिल्टर्स की, फिल्टर्स की भी है, फिल्टर्स की के थ्रू भी डिसेबिलिटीज पर्सन इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टगल्स की, टगल्स की के थ्रू भी यहाँ पर दैट वन द पर्सन जो डिसेबिलिटीज पर्सन होते हैं, डिसेबिलिटी में देयर द सो मेनी क्राइटेरिया, सो मेनी क्राइटेरिया, नॉट एक सिंगल्स की भाई वो डिसेबिलिटी चल नहीं पा रहा, ऐसा नहीं। जिसके पास में ना देखने का शक्ति हो, ना उसको सुनने का शक्ति हो, ना जिसके पास में फिंगर हो उसके पास में, इस तरह का भी डिसेबिलिटी हो सकता है कि जो वो नॉर्मली ढंग से कीबोर्ड को ना तो देख पाए, ना तो वो टाइप कर पाए, तो वो भी कैसे यूज करेगा? तो ये भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दिया हुआ है इन योर द कीबोर्ड। दिस इज द वेरी यूनिक फीचर्स जो मैंने यहाँ पर बताया। दैट वन योर द क्या क्या बताया? दैट वन योर द फर्स्ट वन योर द स्टिकी की, स्टिकी के बारे में या आप कहीं पे कॉपी में नोट करो, इसके बारे में पढ़ना है, वैसे मैं बताता हूँ रफली बेसिक्स। देन आफ्टर योर द टगल्स की, टगल्स की हो गया, और एक वन द फिल्टर की, फिल्टर की, दैट वन द फिल्टर की। तो ये सब की है किस तरह के फीचर्स है